بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ ساجد بھاگتے ہوئے اپنے کمرے سے نکلا۔ وہ ڈری سہمی اپنے اطراف میں دیکھنے لگی۔ وال پر لگی گھڑی 12 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی تو اس کی حالت بگڑنے لگی۔ وہی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرانے لگی اور وہ بے بس ہو کر نیند کی وادی میں اترنے لگی۔ اس نے خود کو ایک گھر کے باہر پایا۔ وہ اس جگہ کو اچھی طرح جانتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ یہاں رہنا اور آنا جانا پسند نہیں کرتی تھی، مگر مجبور تھی۔ سارا گھر جلا ہوا تھا۔ جس گھر کے باہر وہ موجود تھی، باہر کا موسم بھی عجیب تھا۔ ہر چیز کوہر آلود تھی اور آتے جاتے ہوئے سب کچھ بھیانک سا لگ رہا تھا۔ خوف کے سائے منڈلا رہے تھے۔ اندھیرا بھی پھیل چکا تھا۔ گھبرا کر اس نے اپنے اطراف میں دیکھتے ہوئے ساجد کو پکارا۔ وہ واپس آیا تو نادیہ سو چکی تھی اور گھبرا کر اسے جگانے لگا۔ آنکھیں کھولو، ہوش میں آؤ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ مسلسل اسے جھنجھوڑ رہا تھا، مگر وہ کہاں اٹھنے والی تھی۔ وہ نیم مردہ سی لڑکی بیڈ پر پڑی تھی۔ یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے۔ اگر تم نے ذرا سی بھی غلطی کی تو تم وہاں سے نکل کبھی نہیں سکتے، عامل نے کہا۔ سمجھ گئے نا؟ تم وہاں سے کبھی نہیں نکل سکتے۔ دیکھو بیٹا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اپنے ڈر پر قابو پانا سیکھو تو سمجھو کامیاب ہو گئے۔ یہ خبیث روح صرف اپنی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہے، لیکن یہ بھی کڑوا سچ ٹھہرا کہ وہ بہت طاقتور ہے۔ بہرحال خدا کی مدد شامل حال ہے۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ عامل نے اس کی ہمت بندھائی اور پھر آخری بار اسے طریقہ سمجھایا۔ اس نے جلدی سے سرخ دھاگا نادیہ کی کلائی پر باندھا اور دل میں سوچنے لگا کہ مجھے اپنی بہن کے لیے یہ سب کرنا ہی ہے۔ اس کے بعد وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ وہ اسی گھر میں موجود تھا۔ اسے ویسی ہی آواز آئی جس کا ذکر نادیہ کیا کرتی تھی۔ وہ جلے ہوئے کمرے کے دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ نادیہ، کہاں ہو نادیہ؟ اس کے ہاتھ میں وہی آلہ تھا جو اس نے اس کے ماں کے پیٹ میں اتارا تھا۔ وہ لوہے سے بنی اس برچی کو رگڑتا ہوا نکل رہا تھا۔ برچی کے رگڑنے کی آواز سے نادیہ کے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ دونوں ہاتھ کان پر رکھے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ضبط کھو رہی تھی۔ نادیہ نے آہستگی سے پکارا، کہاں ہو بھیا؟ کیا کروں، کہاں تلاش کروں؟ وہ سوچنے لگا۔ برچی دیواروں پر رگڑتا وہ پورے گھر میں نادیہ کو پکار رہا تھا۔ وہ دروازے کی اوٹ سے جلے ہوئے کاٹھ کباڑ کی آڑ میں چھپ کر ساجد اسے تلاش کرنے لگا۔ وہ ایک جگہ کھڑا تھا۔ ساجد ایک لکڑی کے جلے ہوئے بینچ کے پیچھے چھپ کر اسے دیکھ رہا تھا، جہاں سے اسے اس کے پیر نظر آ رہے تھے۔ سر تا پیر تک جو دیکھا تو اسے اپنے منہ پر مضبوطی سے ہاتھ رکھنا پڑا کہ کہیں چیخ نہ پڑے۔ وہ پورا جلا ہوا تھا، سیاہ چہرہ، ابلی ہوئی آنکھیں جن کے گرد کھال غائب تھی۔ وہ بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ ساجد اپنی بگڑی ہوئی حالت پر قابو پانے لگا۔ کیسے ہو میرے پیارے بیٹے؟ اچھا ہوا کہ تم بھی مل گئے۔ یہ سب تمہارا ہی تو کیا دھرا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر دیکھتا، اس کی گردن اس عورت کے شکنجے میں تھی۔ ابھی ابھی ساجد نے اس کے جلے ہوئے بازو دیکھے تھے۔ انہی ہاتھوں سے وہ اس کی گردن دبوچے گا۔ اس نے سوچا نہیں تھا۔ تکلیف اور کرہت کی کیفیت سے دوچار ساجد اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اسے تڑپتا دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ ہنسی کی آواز سن کر نادیہ کو جھٹکا لگا۔ اس آواز کو وہ پہچان گئی تھی۔ پہچانتی تھی کہ کیسے پورا سال اس نے یہ اذیت برداشت کی تھی۔ وہ ادھر ادھر اسے کاٹھ کباڑ میں پوشیدہ رکھتے ہوئے ڈھونڈنے لگی۔ تم لوگوں نے مجھے جلا ڈالا تھا نا؟ آج دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتی ہوں۔ جلی ہوئی عورت نے ساجد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، تمہاری بہن بھی یہاں ہے نا؟ ساجد نے گھبرا کر منہ پھیر لیا۔ بلاؤ اسے۔ وہ اپنی جلی ہوئی آنکھوں کو مزید بڑا کرتے ہوئے بولی، نادیہ تم خود چلی آؤ ورنہ میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آہٹوں کا پیچھا کرنے لگا۔
साजिद भी घबरा गया कि धमकी पर कहीं नादिया खुद को उसके हवाले न कर दे। सुन रही हो ना? अब उसने लहजा धीमा करते हुए फटे होंठों पर मुस्कान सजाकर कहा था। नादिया मेरी प्यारी बच्ची, आ मेरे पास आ। नादिया ने अपने भाई को उसकी गिरफ्त में देखा तो सरता पा लरज गई। वो जले हुए दरवाजे के पीछे मुंह पर हाथ रखकर सिसकने लगी। यकदम उसे लगा कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसका बाप खड़ा है। छोड़ दो बाबा मुझे, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बेटी हूँ मैं आपकी। वो उसकी कलाई मजबूती से पकड़े कमरे की तरफ ले जा रहा था। नादिया घसीटती हुई उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी। उसने कमरे तक लाकर उसे खड़ा किया। चुपचाप बता, तेरी माँ क्या काम करती है? तेरा भाई भी काम करता है तो तू क्यों मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है? आज से तू भी काम करेगी। नादिया उसका मतलब समझते हुए बंद दरवाजे को देखकर दहल गई। अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करते हुए बोली, जरा सोचो, अगर मेरी माँ और भाई को पता चल गया तो? जवाबन वो कमीनगी की इंतहा को छूकर मुस्कुराते हुए बोला, कच्ची गोलियां नहीं खेली। उसी रईस के घर तेरी माँ काम करती है। तुझे याद है, एक दफा अपनी माँ के साथ उसके घर गई थी अपनी माँ का हाथ बटाने। उसकी बेटी की शादी थी, बस वही मैंने तुझे देखा था। तेरी माँ से उसने बात भी की कि दुबई में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारे और तुम लोग जो गुर्बत की चक्की में पिसते हो उससे भी निजात मिल जाएगी। पर वो औरत मानी ही नहीं, बेवकूफ़, साफ इनकार कर दिया। मेरी बात गौर से सुन, तेरी माँ बेवकूफ़ी कर सकती है पर मैं नहीं। बस आज मेरी बात मान ले, कल तो फिर मजबूरन वही करना पड़ेगा जो तेरी माँ से कहूँगा। फिर वो इजाज़त देने पर मजबूर होगी, क्योंकि और कोई चारा जो नहीं होगा। अरे घबरा नहीं, अभी तो तू दुबई भी जाएगी। कभी देखा है जहाज़? नहीं ना? अरे पगली, हम अमीर हो जाएंगे। एक लम्हे के लिए वो आने वाले दिनों का ख्वाब उसे दिखाने लगा। नादिया ने हाथ झटका तो उसे होश आया। आंखें फाड़े क्या देख रही है? आज रात तेरी माँ घर नहीं आएगी और ना ही साजिद, इसलिए मैं जो कहता हूँ वो करती जा। देख नादिया, हम कब तक गुर्बत की चक्की में पिसते रहेंगे? उस रईस का दुबई में बहुत बड़ा कारोबार है। वो क्या कहते हैं, मॉडल्स। हाँ, और तू भी तो इतनी खूबसूरत है ना, तो बस आज तो उसे काबू करके देख, फिर देखना कैसे वारे न्यारे होते हैं। नादिया उसकी बातें सुनकर दंग रह गई। तुम जैसा घटिया शख्स मैंने कभी नहीं देखा। तुम बाप कहलाने के लायक नहीं हो बेगैरत। नादिया चीखने चिल्लाने लगी, मगर उसके बाप ने उसकी एक नहीं सुनी। और फिर उसे कुछ होश न रहा कि आगे क्या हुआ। जब उसने आंखें खोली तो वो किसी और के हाथों लुट चुकी थी। उसकी माँ उसे झंझोड़ती हुई पुकार रही थी। उसकी माँ सकते के आलम में बैठी उसे देख रही थी। उसने रोते हुए खुद को माँ के सीने में छुपा लिया। साजिद घर में दाखिल हुआ तो नादिया की चीखें सुनकर हैरान हुआ, और जब उसे सूरत हाल का अंदाज़ा हुआ कि उसकी बहन उसके सौतेले बाप के हाथों लुट चुकी है, तो उसने आओ देखा न ताओ और फिर उसकी लम्हों में जान ले ली। पुलिस आई, कार्रवाई शुरू की। साजिद ने पुलिस को बताया कि उसका बाप शराबी था। उसकी माँ को कत्ल करके घर को आग लगा दी, जिसमें वो खुद भी जल मरा। पुलिस कुछ भी साबित नहीं कर सकी। 6 माह बाद साजिद जेल से रिहा हुआ था। दोनों बहन भाई घर लौटे। अपने जले घर के सामने खड़े सोचने लगे कि रात तो यहीं बितानी पड़ेगी। मोहल्लेदारों में से उस वक्त कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा, इसलिए उसने अपने भाई का हाथ थामा और अंदर दाखिल होने लगी। अंदर दाखिल होते ही नादिया घबराई सी। उसे अजीब सा खौफ लग रहा था। रात के 10 बज रहे थे। चांद की रोशनी पूरे कमरे में फैली थी। छतों से बेनियाज कमरों में कहीं कहीं अंधेरा बैठा हुआ था। ये वही घर था जहाँ साजिद ने अपने माँ बाप को मारकर उनका नामो निशान मिटाने के लिए उन्हें आग में झोंक दिया था। उसकी माँ को उसके बाप ने पहले ही आत्ममुहा कर दिया था, और आज जब ये दोनों बहन भाई इस घर में आए थे तो इन्हें जगह जगह अब्बा की आवाज़ें आ रही थीं। आवाज़ के साथ साथ किसी चीज़ के खुरचने की आवाज़ भी आती। इन्होंने घबराकर बाहर पलटना चाहा, मगर दरवाज़ा कहीं नज़र नहीं आया। नादिया इधर उधर भागती दरवाज़ों से टक्करने लगी। नादिया, कहाँ भाग रही हो? खबासत से मुस्कुराता बाप हर जगह नादिया को खड़ा देख रहा था।
नादिया ने चांद की रोशनी में अब्बा को देखा। उसका स्याह वजूद मुकम्मल जल चुका था, कहीं कहीं से तो खाल भी लटक रही थी। उसने खौफ से आंखें मूंद लीं। उसे अपने पीछे बाप के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। फिर वो उसे घसीटता हुआ स्टोर में ले गया। नादिया ने अपनी उंगलियों में अपने दुपट्टे का जला हुआ कुछ हिस्सा और चाकू देखा। अचानक नादिया को झटका लगा। साजिद उसे कब से आवाज़ें दे रहा था, मगर नादिया तो घोड़े बेचकर सोई थी। साजिद की आवाज़ पर वो उठी तो साजिद उसे जगा रहा था। वो उठते ही इधर उधर देखने लगी। भैया, अब्बा जिंदा है, चलो यहाँ से, वो मुझे मारना चाहता है। वो अपने भाई की बाहों में छुपने लगी। शायद नादिया इस वाक़े को भुला नहीं सकी है। साजिद सोचने लगा, मुझे कहीं और रहने का बंदोबस्त करना होगा। साजिद ने सोचा और फिर अगले दिन वर्कशॉप पर काम करना शुरू कर दिया। किराए पर मकान भी हासिल कर लिया। साजिद अब बेफिक्र था कि अब नादिया इस वाक़े को भूल जाएगी, मगर ये उसकी खाम ख्याली थी। चंद दिन गुजरे तो नादिया ने उसे बताया कि वो अब्बा को देखती है जो बदला लेने की बात करता है। साजिद ने उसे काफ़ी समझाया कि बुरे वक्त को भूल जाओ, मगर नादिया की हालत नहीं बदली। साजिद उसे दिमागी मरीज़ा समझने लगा। फिर एक दिन साजिद ने अपना मसला अपने उस्ताद से डिस्कस किया, जिसने एक आमिल के पास जाने का मशवरा दिया। साजिद ने आमिल को तमाम वाक़यात और हालात से आगाह किया। आमिल ने बताया कि जब तुम्हारे बाप की मौत हुई तो नादिया की कोई इस्तेमाल शुदा चीज़ उसके पास थी और बदले की नीयत भी थी। अब उसी इस्तेमाल शुदा चीज़ के ज़रिए वो उसे तंग करता है। जिस तरह वो ख्वाब में आता है, उसी इस्तेमाल शुदा चीज़ से उसकी रूह बांधना चाहता है। अब तक वो इसमें कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि नादिया को ऐन उस वक्त जगा दिया जाता था जब वो उसे बांधना चाहता था। लेकिन जिस दिन उसने उसे बांध लिया तो नादिया तब तक नहीं जागेगी जब तक उसके बाप की रूह उसे आज़ाद नहीं करती, और वो इस हालत में मर भी सकती है। साजिद ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। आमिल ने उसकी मुश्किल भांपते हुए कहा कि दुनिया में बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जिन्हें हमारी अक्ल मानने से इनकारी है, मगर ऐसा होता है, और फिर नेकी और बदी की जंग ता क़यामत जारी रहेगी। इसका हल यही है कि जब नादिया को वो दिखाई दे और उसके पास वो देखे कि कौन सी चीज़ है जिसके ज़रिए वो उसे तंग कर रहा है, तो उससे वो चीज़ ले लेनी चाहिए। तभी उसके बाप की रूह से छुटकारा मुमकिन है। बस एक बात का ख्याल रखना, अपना दिफा करे और उसकी गिरफ्त से बचती रहे। साजिद ने नादिया को आमिल की बात समझाई, उसे ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया, मगर नादिया खौफज़दा थी, अपने खौफ पर काबू नहीं पा सकी। हर रात में नाकामी का सामना करना पड़ता। आखिर आमिल ने उसे एक डोरी तम करके दी कि जब नादिया सो जाए तो वो उस डोरी को नादिया के हाथ में बांध दे। यूं दोनों चीज़ें एक ही ख्वाब से जुड़ जाएंगी और तुम वो चीज़ उससे ले लेना जो नादिया से उसे जोड़ रही है। लेकिन अब की बार जब नादिया को ख्वाब आया तो उसके बाप ने उसके छोटे भाई को ऐसे जकड़ा कि वो दोनों उसके सामने तड़पने लगे और वो कुछ भी न कर सकी। उसके बाप ने कहा कि जब तक तुम मेरे करीब नहीं आती, मैं तुम्हारे भाई को अजियत देना बंद नहीं करूँगा। नादिया को अपनी मौत सामने नज़र आने लगी। वो करीब होती हुई उसके पास जाने लगी, और इससे पहले कि नादिया अपने भाई को उठाने के लिए आगे बढ़ती, उसने खुद को अपने बाप की रूह की गिरफ्त में पाया। नादिया को वो खींचते हुए ले जाने लगा। नादिया चीखती हुई नीचे बैठ गई। अचानक उसकी नज़र उसकी जली हुई उंगली पर पड़ी, जहाँ उसके दुपट्टे का छोटा सा टुकड़ा उंगली के गोश्त पर चिपका हुआ था। अब्बा, साजिद ने खड़े होते हुए उसे पुकारा। वो चलते हुए बिना रुके मुड़ा और एक लफ्ज़ की जंजीर ने जैसे उसके कदम रोक लिए। फुर्ती से नादिया ने हाथ की उंगली से दुपट्टे का टुकड़ा खुरच डाला। दुपट्टे का टुकड़ा उंगली के गोश्त से उखड़ गया तो वो चीखने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो धुएं की लपेट में आता गया और उसका पूरा वजूद धुएं में तहलील हो गया। नादिया और साजिद ने घबरा कर एक दूसरे को देखा। साजिद ने जल्दी से नादिया और अपने बाजू पर दमशुदा डोरी को बांधा तो अगले ही लम्हे दोनों बहन भाई अपने कमरे में नींद से जाग गए। अब हमेशा हमेशा के लिए दोनों बहन भाई अपने बाप के इंतकाम से छुटकारा पा चुके थे।
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔